eCube Solutions. Energizing lives renewably. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, कैसे हैं आप? मेरा नाम है वलीद राना and I am again at your service with episode 5 of On the Grid with eCube Solutions. Ladies and gentlemen, the individual today that we have has had multi-diverse experience in multinational corporations and other sectors in the market. Just to name a few, this individual has a diverse and rich blend of experience of above 35 years with different multinational organizations like Citibank, Hoist, which is presently known as Sanofi, Iantis, and National Fertilizer Corporation, which is NFC. He has also had experience in Center for Management Development, which is CMD, which is a renowned trading house and a training center, and has experiences in AMDIP, which is the Association of Management Development Institutions in Pakistan. He has also worked with SARC, and he's also marketing consultant for an advertising company. A little more into what he is as a person, ladies and gentlemen, his major areas of expertise lies in delivering training to the corporate sector, especially in the marketing and sales departments, along with soft skills, having imparted training to Bank of Punjab, Pell, Packages Limited, Olympia Chemicals, and Coca-Cola International, to name a few. Gentlemen and ladies, this is a guy who has trained above 20,000 participants from teachers, professors, session judges, principals of the government colleges, Punjab Police, NAB, and MPDD, which is the Punjab board, and then he has also experience in Punjab Judicial Academy, NAB Punjab, and other various institutions. This guy, ladies and gentlemen, also serves as a professor at University of Central Punjab, and his focus areas include marketing strategies, strategic distribution network, and marketing of services. He has had various contributions to different universities as well. So let's get to know from the man himself. I give you Mr. Basharatullah Malik. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Alhamdulillah. Sir, you've had amazing experience. I have your profile in front of me, और आपने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं. Sir, a little introduction on what you've done so far. I might have missed a lot of things. I would like to hear from you. No, thank you very much. It was very extensive, and you have really covered all the parts. And one thing which has not been mentioned, which is not very relevant either in terms of marketing, etc., that I have served in army as well, and a war veteran of 1971. Right, sir. So that is an amazing fact that you've just quoted. बहुत अच्छा लगा हमें आपको इस स्टेज पे, इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको बुला के, एंड वी आर कम्प्लीटली ऑनर्ड टू हैव यू सर ऑन आवर सीरीज़. सो सर, चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ, और आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ और अपनी ऑडियंस को भी बताता हूँ ऑफ व्हाट वी डू एज अ कंपनी. eCube Solutions Private Limited started off 5 years ago with the vision to completely revolutionize the solar industry in Pakistan. We believe in business ethics, and we believe in delivering solutions to the energy problems that you might have in the domestic, commercial, and industrial sector. We have catered a lot of companies, a lot of multinational corporations. We have catered a lot of domestic consumers, and we're also partnering with banks which are giving easy installment plans, and we're also on board for the State Bank Renewable Energy Scheme. So eCube Solution is striving to do the best in the market, and this is just one of our contributions to the community to educate and make yourself aware of what solar industry is as a business, and how not to go for people and vendors who are trying to deceitfully deceive the consumer. So इसी हवाले से जो हमने आज का टॉपिक रखा है वो मार्केटिंग का है, और हमारा आज का टॉपिक है सोलर मार्केटिंग and how to energize your B2B efforts. B2B, ladies and gentlemen, is business to business. So how to energize the B2B efforts, उस पे हम आज बात करेंगे. बशारतुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हैं, और सर, मेरा इस हवाले से सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर, what role does marketing play in our society? क्या सोसाइटी में मार्केटिंग क्यों आई, और इसका क्या रोल है, और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड के लिए? I'll try to be very simple. जंगल में मोर नाचा किसने देखा? If you've got an excellent product,
it's a wonderful product you have worked upon, you have invested, but you have failed to inform the people that the product is available and how far it will be useful for them, then the product will not be sold. The point is, having a product is very important, but not letting it know to the people and not making it available in a manner that the people can buy and use it, then there's no fun doing all this. तो हमें करना ये है कि हमारी प्रोडक्शन साइड भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है. अगर प्रोडक्ट नहीं है तो बेचेंगे क्या? अगर प्रोडक्ट है और बेचना नहीं आता तो फिर करेंगे क्या? तो करना ये है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना. जी बिल्कुल सर, ज़बरदस्त. आपने बड़े मुख्तसरन तरीके में और बड़ी सलीस अल्फाजों में आपने बयान कर दिया कि मार्केटिंग का क्या रोल है इंडस्ट्री के अंदर और किस तरह से ये बहुत एक समझ लें कि शारग है किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी ब्रांड की. तो सर इसी हवाले से मेरा अगला सवाल आपसे सर ये होगा कि व्हाट मेक्स अ ब्रांड द ऑब्वियस चॉइस ओवर अदर कंपैरेटर्स, क्योंकि मार्केटिंग तो सब करते हैं, तो क्या ऐसी बात होगी एक ब्रांड में जो कि कंज्यूमर के लिहाज से उसको एक एज देता है ओवर अदर कंपैरेटर्स? Number one thing is that your brand should be giving or offering something unique which your competitor is not doing. अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसी है जो दूसरों से बेहतर जा रही है तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल. एंड ब्रांड इज समथिंग वेयर यू ट्राई टू ingrain this, and brand is something that you try to give a message it is into the minds of the people, and you try to position up your brand also. Now the point is that having a product which is like you have solar panels, and solar panels, every company is providing the same solar panels, maybe imported from Germany or China or whatever. And what is the difference? How can you create a unique difference between the competitors and yourself? And that is your service. And that is how you will make it delivered, and how you facilitate your people, the customers, in terms of finances as well. Now, what you have got to do is you have got to do so many things so that the people are interested in your product and they feel that they are the right people because you facilitate them properly, and they are very assured that if at all something happens. And I tell you one thing, solar panels is a very simple product, but people think that it is something it may not explode on their rooftop. That is the problem. You have got to take care of their fears. Second, the most important thing nowadays is that people do not have the right information, because we know it what solar panels are, and you know it because you are selling it, and we think that everybody knows. I tell you that most of the people in Pakistan, just ask them one question कि गर्मियों में सोलर पैनल बिजली ज़्यादा पैदा करता है, तो वो कहेंगे हाँ जी वो ज़्यादा पैदा करेगा क्योंकि गर्मी बड़ी है, तो जितनी हीट होगी उसके साथ ज़्यादा बिजली पैदा होगी. अब देखें ये मिथ है, बिकॉज हीट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द सोलर पैनल production capacity. Exactly. It is the light. It is the light. People normally don't know. And that is the thing which we have got to. The stage at which the Pakistan solar panel, product is concerned, the most important thing is that we should be providing information to the people, what the product is, what is the benefit, and you have got to inform them that how beneficial it is, what will be the payback period. Absolutely. Payback period, I know it is 3 to 3.5 years, and this is very important, which should be told to them. And another thing which you can do, I don't know what questions you are going to ask me, but I'm just telling, the thought is coming into mind. You can do one thing, that you make the product available to them through the banks or somewhere, and the installment which the person has got to pay, it should not be more than the saving on the electricity bill. You'll see that your product will start selling like anything, because people will compare that if we'll, for example, वो 25,000 रुपये महीना बचाएंगे, तो 25,000 रुपये महीना उनको किस्त देते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी. पहले भी तो दे रहे थे ना, और अब चीज़ उनकी अपनी हो रही है.
ये एक बहुत यूनिक सेलिंग पॉइंट है एंड यू शुड वर्क ऑन दैट। लोगों को मैसेज ये दें कि आप कि प्रोडक्ट आपकी अपनी होती जाएगी, 25,000 जो आप पहले दे रहे हैं, जो बचत होगी वही आपने देना है और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। एब्सोल्युटली। और जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो 3 पॉइंट मैं बड़ा अमेज हुआ हूँ और बड़ा अच्छा मुझे लगा है जो आपने खुद से बयान किए हैं, वो ये है कि पहली चीज़ जो आपने जिसका तज़किरा किया कि आप सोलर पैनल्स सबके पास हैं, सबके पास। अगर आप एक अच्छी कंपनीज के साथ आप उनसे कोट्स ले रहे हैं और उनसे आप सोल्यूशन ले रहे हैं और वो एक सेम लीग में फॉल करती हैं, तो प्रोडक्ट्स तो उनके पास सेम होंगे। व्हाट मैटर्स इज़ द पीपल। ये आपका जो पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि सोलर पैनल्स या सोलर सोल्यूशन जब आपने लेना है तो आपने सिर्फ प्राइस नहीं देखनी है, आपने प्राइस देखनी है, आपने प्रोडक्ट्स देखने हैं, आपने कंपनी देखनी है और आपने उस कंपनी के लोग देखने हैं। तो अगर ये चारों मैट्रिक पे कोई कंपनी पूरा उतर रही है और फिर आपको वो सबसे अच्छी प्राइस दे रही है, तो ऑलवेज गो फॉर दैट कंपनी। एक तो ये बात आपने बड़ी अच्छी की सर। दूसरी बात जो आपने हीट की अक्सर लोगों को नहीं पता होता। अक्सर लोग समझते हैं कि लाइट ज़्यादा होती है तो सोलर की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो आपने जिस तरह से फरमाया कि हीट ज़्यादा होने से, लाइट ज़्यादा होने से सोलर की एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि उसमें इरेडियंस का फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ। नंबर 1 वैल्यू प्रोपोजिशन इज दैट यू फैसिलिटेट पीपल। Facilitation is not only that you provide the product. Number 1, एक पहले ये सोच लीजिए कि जब आपको किसी की फ़ोन कॉल आ जाए तो फिर आपने ये नहीं कहना कि जी 3 महीने बाद हम आएंगे। अगर आप 3 महीने के बाद जाते हैं तो फिर you lose the sale. Number 1 thing he has said, and you just ask them at what time it will be more appropriate for you that our man should visit you. And if he says कि आज, तो you should make 1% rush to that person, no matter वो सेल culminate into the actual sale जो होगी, जो discussion, वो तो बाद में होगी, वो ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त हो जाए, but immediate response that is very important. And the companies who are not responsive, they don't do anything. If you call, for example, if I call you and you say that okay, well, somebody will come at one time, okay, maybe 2 weeks or 3 weeks, I'll be disinterested, because when I've called you, that is the time I'm interested, and maybe after 2 weeks I'm not interested, that I'll contact somebody else and something like that. तो first promptness जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो करें। उसके बाद उनको engage कर लें। आप कभी विजिट कर रहे हैं, उनको प्राइस दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, और बंदे की वो नॉलेज लेवल को देखते हुए एक इंजीनियर को समझाना बड़ा आसान होगा, एक बहुत पढ़े लिखे बंदे को समझाना बड़ा आसान होगा, और एक जो कम पढ़ा लिखा है उसको शायद यू विल हैव टू यूज अनदर लैंग्वेज विच विल नॉट बी टेक्निकल एट ऑल, लेकिन आपको उस तरह बात करनी होगी। एंड कस्टमर कुड बी समथिंग हु इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड। तो ये बातें कुछ आपको देखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि प्रॉम्प्टनेस यूनिक फिर बनाने के लिए क्या है कि द प्रोडक्ट शुड नॉट बी इनएक्सपेंसिव और चीपर देन द अदर्स, बट इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव देन द अदर्स। देयर शुड बी सम कस्टमर कंफ्यूज हो जाए कि यार ये महंगी है कि सस्ती है। अगर आपने सस्ती कर दी तो कस्टमर कहेगा कि ये को पता नहीं क्या मुझे ला के दे देंगे और इन्होंने बाद में सर्विस नहीं देनी। अगर आपने महंगी कर दी तो कस्टमर आपसे नहीं लेगा कि यार ये तो महंगे। तो आपने कहीं दरमियान में गेम खेलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वही चीज़ 1 लाख रुपए की आपका कंपैटिटर दे रहा है, आप उसको 1,02,000 का कह दें, 3,000 का कह दें, और उसके बाद डिस्कशन करते हुए उसको 20,000 रुपये आप डिस्काउंट दे दें, वो ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले दिन ही ये कह दिया कि जी ये हमारी महंगी होगी या सस्ती होगी, सस्ती पे भी आप लूज़ करेंगे सेल और महंगी पे भी लूज़ करेंगे। Absolutely. तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। और तीसरी यूनिक पोजीशन ये है कि फैसिलिटेट करना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अब फाइनेंसेस ये है कि मैं पर्सनली मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि कोई सूद के ऊपर पैसा ले या जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उससे ले, बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि आप सूद पे पैसे लें या सूद दें तो आपकी बर्बादी स्टार्ट। इसके ऊपर तो खैर हम रिसर्च ही नहीं ना करते कि क्रेडिट कार्ड जो लोग लेते हैं और वो सूद देते हैं तो वो बैंकों को क्या हुआ है
क्यों सिटी बैंक यहाँ से बंद करके चला गया या दूसरे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड। खैर दिस इज लिटिल डिफरेंट डिस्कशन, इसको मैं यही ख़त्म करता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि ये जो है ना किसी ऐसे सोर्स से उसको मिले कि कोई एक्स्ट्रा उसको ना ले, और उससे फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर भी कंफर्टेबल, आप भी कंफर्टेबल। हाँ, ये बात हो सकती है कि द बैंक विच इज़ इन्वेस्टिंग ही कैन से दैट माय जो भी है इसमें मेरा ये प्रॉफिट होगा या मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो इन द मीन टाइम वो किराए के तौर पे लेगा। वो कहेगा कि मैं आपको सोलर पैनल लेके लगा देता हूँ, इसका किराया होगा, और ये किराया वो हो भी नॉमिनल। हमारे उधर भी बड़ा मसला है कि वो जब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आते हैं तो किराया ठोक के लगा देती है, तो इससे ये काम नहीं चलता। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड दूसरा एक और चीज़, रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दे स्टार्ट। फॉर एग्जांपल एक घर को आपने लगा दिया, मैं आपको टिप दे देता हूँ, आपने लगा दिया इन ए वीक और मे बी द सेकेंड डे, और यू जस्ट कॉल देम मे बी आप अपने दफ्तर किसी से करवा लें फ़ोन कि वो कॉल करें, उनका जी कि कल आपके यहाँ हमने वो लगा दिया है और उसको ऑपरेटिव कर दिया है। ये जिस तरीके से हम लगाते हैं वहाँ सालों कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू आए तो आपने घबराना नहीं, आपने फौरन हमारे नंबर पे फ़ोन कर घबराना नहीं है सर, ये बड़ा बिल्कुल घबराना नहीं है, चल रहा है कि घबराना नहीं है। वो तो लोग, अब मैं अगर घबराना नहीं की बात करूं तो हज़रत अली से किसी ने कहा कि आप पे कभी कोई मुसीबत आई, उन्होंने कहा नहीं मुसीबत नहीं आई, मुश्किलात आई। बिल्कुल सर, लेकिन अगर मैं घबरा गया तो वो मुसीबत बन गई। जी जी जी। प्रॉब्लम ये है, ये तो हमारे माशरे में चल रही है ना, सही या गलत बात को पकड़ के रगड़ा देते रहते, लेकिन घबराना नहीं है। जो घबरा गया वो घबरा गया, उसके बाद उससे कुछ नहीं होना। और ये डायलॉग जो है ये गलत नहीं है, अगर किसी को वो बंदा पसंद नहीं है तो दूसरी बात। अच्छा सर, बंदा तो इस तरह ही है, ये अब खैर हम पॉलिटिकल बातें पे नहीं जाएंगे। नहीं पॉलिटिकल नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मैं तो हज़रत अली की मिसाल दी, उनके ये वर्ड्स हैं, और ये मैंने आज नहीं सुना हुआ, ये मैंने कई साल पहले का ये उनका फरमान सुना हुआ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब एक बात आपकी है कि जिस वक्त आपका फ़ोन जाएगा ना उन्हें जी कि जी कि आपको कोई मसला हो तो फ़ोन करें, आई टेल यू दे विल फील कि भाई ये लोग हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। दे विल बी सेटिस्फाइड। एक होती है पोस्ट परचेज डिसोनेंस हम कहते हैं। हाँ, इसको मैं तर्जुमा करके बताता हूँ कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसके फ़ौरन आपको पछतावा शुरू हो जाता है जी। तो जब पछतावा शुरू होता है ना, उसको कम करना आपके मार्केटर का काम है। तो ये टेलीफोन उसको डिसोनेंस को कम करेगा। मैं ज़रा इस पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी कई प्रोग्राम्स हैं ना, उसका मैंने आपको बताया हुआ। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। सर बस इसको थोड़ा सा आप बिल्कुल सही फरमाया कि रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं व्हेन यू डील विद द कस्टमर। और मेरा ये मानना ये है, और मैंने एक्सपीरियंस से भी ये सीखा है कि सर इंडस्ट्री के अंदर जब तक आपकी आफ्टर सेल्स स्ट्रॉन्ग है ना, जब तक आपने प्रोडक्ट सेल जब आपने कर दी है, उस टाइम पे आपकी सेल नहीं हुई, सेल तब स्टार्ट हुई है। एंड दैट इज व्हेन यू नो डू द राइट आफ्टर सेल्स एंड यू टेक केयर ऑफ योर customers, even after the warranty periods, you stay in touch with them, you do some things to oblige them, you do some things which are not monetary for them. So that is what really pays you. That is when they dil se wo aapko refer karte hain aage ki taraf, or they become your own marketeers. Your customers become your marketeers. Yes, they will become your advocates. Yes, and they will start telling other people कि यार सोलर पैनल लवाना ना तो दस वसीम साहब मेरे बड़े दोस्त हैं। एग्जैक्टली बड़े चंगे वो बड़ा एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल प्रोसेस बन जाता है। हाँ, और people will start coming to you automatically। बिल्कुल सर, इसी हवाले से मेरा अगला क्वेश्चन है, आपने बड़ा अच्छा इसको मोड़ लिया है आप उसके अंदर कि सर व्हाट इन योर ओपिनियन इज द बेस्ट मीडियम टू एजुकेट एंड इंस्पायर योर बायर्स? मीडियम तो अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती तो टेलीविजन था, लेकिन आई डोंट नो कि व्हाई द गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। वो उसके ऊपर लंबी बहस हो जाएगी, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम कम है जी। तो उस वजह से
अगली नशस्त रख लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक तो है। ऐसा है कि मीडियम बेहतरीन तो यही है कि यू शुड ट्राई टू कांटेक्ट। और एक और अभी बात आप कर रहे थे B2B की, जो अभी हम स्टार्ट नहीं की। B2B इज़ अनदर मीडियम थ्रू विच यू कैन एजुकेट देम बाय पर्सनल सेलिंग। एवरीबडी यू शुड सेंड योर जो कहते हैं नुमाइंदे और योर रिप्रेजेंटेटिव्स to them, and they should tell them that what what it is and what the product is. And in B2B, most of the people will be very what you call educated, and they will understand the things well. और दूसरा, चूँकि B2B अब मैंने जिक्र कर ही दिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो शॉप और ऑफिस सुबह 9 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है, वही तो टाइम है जब कि सोलर एनर्जी फुल्ली आती है थ्रू सोलर पैनल्स, एंड दैट इज द टाइम दे आर द राइट कस्टमर्स फॉर यू, जो रात तक नहीं जाते। चलो रात वालों के लिए आप बैटरियां लगा दें, लेकिन ऑन द होल जो सुबह वाले हैं, जो 5 बजे ऑफिस का बंद करके आ जाते हैं 6 बजे, उनका तो बिल्कुल मुफ्त का काम हो जाएगा, एंड दे आर द राइट पीपल। दूसरी बात यह है कि आप कमर्शियल लोगों की तरफ ज़्यादा जाएंगे ना, तो वो आसान है। जो 18 रुपये का यूनिट आपको हमें डोमेस्टिक लोगों को मिलता है, आम घरों में डोमेस्टिक उसकी प्राइस 18 रुपीज़ है, तो उधर 25 या 28 है। तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड विद द सेम मनी इन्वेस्टेड, दे विल बी सेविंग मोर मनी एज फार एज देयर एक्सपेंसेस कंसर्न। तो दैट इज़ द राइट प्लेस, एंड इफ़ यू स्टार्ट सेंडिंग योर इंडिविजुअल, then that is आसान तरीका and very what you call inexpensive. If you go to the television or radio or newspapers, it is very expensive. Television will charge 400,000-500,000 rupees per minute, and if you go for 1-2 minutes a day, आपका तो काफ़ी काम हो जाएगा। लेकिन there is no need to go for that because your operations may not be in whole of Pakistan. So why to go to television and spend lot of money while you don't have in most of the cases to spend like that? So your personal selling is the best way, and this is the best way of educating people. Absolutely, sir. बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा कंसाइसली आपने इसको वाइंड अप किया है. बस any last words that you would want your audience to hear from you on why they should always opt for a cleaner and greener energy, और उसके बाद फिर लास्ट वर्ड्स के बाद फिर इसको हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपका काफ़ी टाइट स्केड्यूल है, और आई कैन नॉट थैंक यू इनफ कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए भी अपने टाइट स्केड्यूल में से. ऑडियंस मेरे एक तो वो हैं कि हु आर सेलिंग द सोलर पैनल्स, दूसरे मेरी ऑडियंस हैं कि हु आर लाइकली टू बिकम योर कस्टमर्स, एंड फॉर द कस्टमर्स आई टेल यू द मैसेज इज कि दिस इज द बेस्ट चॉइस दे कैन मेक. आई एम नॉट सेइंग कि यू बाय फ्रॉम दिस और दैट, but the point is that this is the best choice they can make, because it will not only help them financially, it will help them way, when the whole country will be benefited. Green energy, no carbon. और सबसे बड़ी बात, कोई इस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं करता, आप भी नहीं कर रहे होंगे शायद, कि यार खामोश एनर्जी है. कोई कारखाना लगाओ शोर मचा देता है, 2-2 मील तक आवाज़ जाती है. हाँ, ये आपकी छत, हाँ, छत पे पड़ा साइलेंस के साथ अपना काम करी जा रहा है. और ये देखे ना, हम वो पॉइंट्स हम लोगों को बता नहीं रहे. कार्बन एमिशन ज़ीरो, कार्बन एमिशन ज़ीरो, शोर ज़ीरो, मसला कोई नहीं. छतें हमारी खाली पड़ी हुई हैं, छतों पे अब हम सोते भी नहीं हैं. कोई थोड़े से लोग हैं जो कबूतरबाजी करते हैं, पतंगबाजी पे पाबंदी लग चुकी है. एंड आपकी छतें खाली है यार, उसको यूटिलाइज करो. इट्स ए बिग रिसोर्स. और मैं छोटी सी बात बता दूं कि मेरा जो एस्टिमेट है, जो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की हुई है, अगर पाकिस्तान में 10 लाख घर 10,000 वाट का लगा ले पैनल, तो पाकिस्तान में 10,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होगी सूरज निकलने और गरूब होने तक. 10,000 मेगावाट 10 लाख पे. पाकिस्तान में घर कोई 70 लाख है पक्का और बड़ा, जिसके ऊपर ये लग सकता है. तो वो 10,000 मेगावाट की बजाय 70,000 मेगावाट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द रूफटॉप्स. और आप इसके ऊपर आए, दिस इज द वंडरफुल थिंग. एक और चीज़ आपने करनी है, गवर्नमेंट से भी कहें प्लीज़, आप कभी लैपटॉप बांट देते हैं, कारखाना नहीं लगाते.
अब आप सोलर पैनल चाइना से मंगवाई जा रहे हैं, इधर से मंगवाई जा रही हैं, और आपकी ज़रूरत है अगले 10 साल आप सोलर पैनल के 2-4 कारखाने लगा दें, तो कारखाना क्यों नहीं लगाते हो यार, क्यों फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजते हो? Exactly. और जिस दिन ये सोलर पैनल लग गए और आपके यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, तो आपको महंगा तेल भी मंगवाना नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है $6 to $7 billion will be the saving if we stop using oil for this purpose in the daytime. बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़ी अच्छी आपने बात की है। तो इस पे हम इंशाल्लाह सारी सोलर कंपनीज़ मिलके इसी ड्राइव को करने की कोशिश कर रही हैं, और हम भी इसको मज़ीद आपके तवसुत से इसको मार्केट करेंगे कि किस तरह से हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को फैसिलिटेट करना चाहिए टू आर कंज्यूमर्स, और किस तरह से कंज्यूमर्स को हम एजुकेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी की तरफ आएँ, ना सिर्फ अपनी एनर्जी में ख़ुद साख्ता होके इंडिपेंडेंट हो जाएं, बल्कि कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द कंट्रीज शॉर्टफॉल एज वेल, ताकि हम दोबारा से एक बार फिर एनर्जी के इंपोर्टर्स नहीं बल्कि एक्सपोर्टर्स बन सकें। इस नोट पे सर आज के ये पॉडकास्ट सीरीज़ ख़त्म करते हैं। बड़ी छोटी शॉर्ट एंड स्वीट थी, आपसे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और बड़ा अच्छे से बड़ा कंसाइसली आपने इसको वाइंड अप किया है और इसको चीज़ों को अपने मुख्तसर तौर पे बताया, और दैट टेल्स हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर एज अ मार्केटर, कि वो जिससे कहते हैं ना कि आपने एलिवेटर पिच जो होती है, जो 10 सेकंड की पिच होती है, एंड यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट इट अबाउट योर ब्रांड टू द पर्सन, तो आपने उसी अंदाज से मेरे ख्याल से हमारी आज तक की सबसे कंसाइस और सबसे फ्रूटफुल पॉडकास्ट रही है ये वाली। तो थैंक यू सो मच बशारतुल्लाह साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वाज मिस्टर बशारतुल्लाह साहब, एंड आपने इनकी मज़े की बातें सुनी होंगी कि बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं अपने मार्केटिंग फील्ड के अंदर, और अपना इनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से जिस तरीके से बात को करते हैं वो बात समझ भी आ जाती है, और वो बात जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज में समझ आती है। तो थैंक यू सो मच for joining us and for listening to our episode 5 of the podcast series On the Grid with eCube Solutions. This was Waleed Rana, your country sales manager for eCube Solutions, and I'll see you in the next one. Assalamu alaikum and Allah Hafiz. eCube Solutions. Energizing lives, renewably.